So we already discussed in testing part 1 add, edit, delete testing. Now this is testing part 2 video. So we'll discuss the other things. Now I'll cover most of the items one by one. Let us talk about what is button behavior, right? Okay. Let me cover this button behavior. So again, you see this is a screen in a standby mode or a view mode. Now when you press, now we are talking about button behavior. जब आप add बटन प्रेस करते हैं तो ये add मोड में आ गई स्क्रीन, करेक्ट. अब इसके बाद दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, सेव एंड कैंसिल. कभी कभी इन बटन्स का बिहेवियर सही नहीं होता है. ऐड प्रेस करने के बाद आपको ऐड ही आ रहा है या एडिट आ रहा है या अपडेट आ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग. जब आप ऐड में हैं तो इसके बाद दो पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, या सेव या कैंसिल. यू कैंसिल है. मान लीजिए अब आप एडिट मोड में है तो अपडेट मोड में आप एडिट एंड अपडेट मोड एक ही बात है. जब अपडेट है तो या तो आप रिकॉर्ड सेव करेंगे या कैंसिल करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड बटन बिहेवियर, राइट. ओके, नाउ लेट अस पिक द अनदर आइटम, grid. Let me talk about the grid now. Okay, so if you see, we can talk here, but I wanted to cover a bigger grid, right? Whenever I say on a grid, you do the grid testing. So there are various things on a grid. First is column based search. Are you able to search the right name? Now here if I write demo, correct, you should be able to search the record demo. This was one aspect. The other aspect is, are you able to, now for example you want to check date of birth greater than, okay, date of birth greater than, and you want to select some date, correct, say 2018 July 1st. Now you see all the dates should be greater than 2018 July 1st. There should not be anything which is less than that. So you're testing the behavior, whether the search is working properly or not. You have to test whether the sorting is working properly or not, and for all the columns this should be happening. You have to see that there is this paging is not working or not. ये paging proper होना चाहिए आपका. आप देख रहे हैं ये, right? You should be able to see कितना पेज है, कितना आइटम है. Then if you want to see number of records per page. सो ग्रिड पे हमारे इतने सारे फीचर्स हैं, एंड जब आपसे ग्रिड टेस्टिंग की बात कही जाए तो यू नीड टू कंफर्म दैट ऑल दीज फीचर्स आर वर्किंग प्रॉपरली. ग्रिड में हमारे यहाँ एक फीचर और होता है, एक होता है डिफ़ॉल्ट ग्रुपिंग, एक होता है ऑन द फ्लाई ग्रुपिंग. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लास्ट नेम से ग्रुपिंग करता हूँ, मैं बस इसको यहाँ पर ऊपर कर दूंगा. अब ये रिकॉर्ड देखेंगे, यादव से, वर्कफ्लो, विलियम, वेरेना, ये लास्ट नेम से ग्रुपिंग हो गए हमारे सारे रिकॉर्ड, करेक्ट. ओके, now I can bring the last name back, grouping हट गई. You also need to see, ये हालांकि स्टैंडर्ड है, सब सही चलेगा. ऑन द फ्लाई मैं कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ऑन द फ्लाई कॉलम हटा सकता हूँ. सो these are various ग्रिड बिहेवियर टेस्टिंग, करेक्ट. ग्रिड का लोड टाइम सही होना चाहिए, ग्रिड में डेटा सही आना चाहिए. These are the various things which you should be able to check. Okay, we covered the grid. So grid is done. Now let us talk about search testing. सर्च एक तो ग्रिड पे होती है, एक सर्च और हमारी पॉपअप लुकअप में होती है. एंड let me cover that pop-up lookup search. Now if you see in our software at many places you will have this kind of a search, right? So what is lookup search? For example, I press these three words. No, okay, let me see. We have got Lavesh, Mahi. So everyone starting with Lavesh and Mahi should be here. Okay, let me do this. Okay, Guru Singh. This is something is not right. Anyway, LAV. Now Lavesh Garg I see. Okay, it is working. MAHI. Mahi. Okay, all the names starting with Mahi will come. Let me put MAH. All the names. So this is working fine. Mahi Datta I selected. It comes in. Right, so this is lookup. Now let me talk about pop-up search. It seems there is an error in pop-up. If I, for example, Guru, GURU, all persons with Guru should be searched. This is working fine. Let me talk about Mahi, MAH. Everyone with MAH is here, but I think it was not working when I select one record. No, it is selecting something else. So this is an error, right?
So search is working fine, but selection is not working fine. So pop-up search, pop-up selection of item, and here also if I ask you, you need to test what is gridding, how many records it is showing, 1 to 3 of 3 records, how many pages, everything you should be working fine. Now pop-up and lookup is covered. Okay, so let me start putting this green. These are covered, right? I covered search testing, I covered pop-up lookup as well. Business case we'll talk later. Aesthetic, let me talk about aesthetics. Okay, now what is basically aesthetics? When we talk about aesthetic, is simply we should be able to see that the screen is opening properly, name is in center, things are not going haywire, right? So this is something called aesthetic testing. If I show you one screen which is not 100% good as per aesthetics, is timetable, right? See, this is going out of frame, correct? This is not right, this screen is not right. We will correct it, but I'm just trying to show you, had it got loaded this way, it would have been good, but default entry for 100% it is not giving good. Neither यहाँ पे scroller आ रहे हैं, तो aesthetically this screen is not coming up right, visually this is not right. This is what the aesthetic testing is. Okay, add, edit, delete I already covered. Let me, grid sorting is covered. Okay, session timeout is something, group visibility I covered. Now let us talk about validations. Okay, now validations, there are various kind of validation. First of all, I'll try to show you validation, common validation on form, right? So let us go here, and when we talk about validation, if you see here, okay, on this form, now there are several fields. Let us talk here. Now if you see the phone number, now first of all, एनी कॉलम, कोई भी डेटा कोई भी कॉलम में इनफाइनाइट हमें स्टोर नहीं कर पाना चाहिए, राइट? इट शुड नॉट हैपन. अब ये रुक गया, दैट मीन्स दिस इज फाइन, करेक्ट? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक मैक्स लेंथ एक मिनिमम लेंथ, एक ही कैरेक्टर आप लेके आगे चले जाओगे. इट शुड गिव यू एरर वाइल सेविंग द रिकॉर्ड, राइट? सो दैट इज वन. मिनिमम लेंथ टेस्टिंग इज 3 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन इट. मैक्स इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या है कि जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ मैं कैरेक्टर, आई शुड नॉट बी एबल टू एंटर कैरेक्टर, दिस इज़ रॉन्ग. कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं कैरेक्टर एंटर कर पा रहा हूँ इज़ रॉन्ग, करेक्ट? ओनली नंबर शुड बी अलाउड. सम ऑफ द प्लेसेस वी हैव गॉट ओनली कैरेक्टर इज अलाउड, अल्फा न्यूमेरिक. नाउ दिस शुड गिव यू द एरर. अगर मैं यहाँ प्रॉपर ईमेल नहीं लिखता हूँ तो वो ईमेल पैटर्न शुड, दीज आर कॉमन थिंग्स, राइट? सो min length testing, max length testing, these are called validation. These are normal common validations we are talking about. Okay, let me go back again and see what are the other validations. Max length data type like email है या आपका numeric है तो numeric ही जाए, minimum कितना हो. We have tested all this. What is space testing? Let me talk to you about this. Okay, validations, unique validation I'll cover. This is business functional testing. I'll cover validation from business functional as well. So but I talk to you about these things. ये टेस्टिंग क्या होती है, करेक्ट? स्पेस टेस्टिंग की बात करते हैं अब हम. स्पेस टेस्टिंग में क्या होता है, व्हेन यू सेव द रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम लिखा था डेमो 1, राइट? sometime it has been seen that when you save it, वो डेटाबेस के अंदर जाता है तो वो स्पेस लेके जाता है. तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? एडिट मोड में खोलेंगे और कर्सर लगा के देखेंगे. अगर स्पेस रही होगी तो आपका कर्सर यहाँ दिखेगा, या पीछे से स्पेस आएगी तो आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस. ये नहीं जानी चाहिए, करेक्ट? तो इसको स्पेस टेस्टिंग बोलते हैं कि लाम के संग कहीं स्पेस तो नहीं जा रहा है. And this should also be checked in all the columns. This is something called the space testing. Okay, this we will talk later in finite loop. Now let me talk about the validation, date of birth and unique. Okay, business functional, इसको मैं बोलूँगा कहीं वैलिडेशन बिजनेस फंक्शन के हिसाब से लगता है. ना फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की बात करता हूँ.
क्लास प्ले वे पे जो बच्चे का एडमिशन होना है, जिसका फॉर्म ले रहे हैं हम वहाँ पे, दिस इज़ अ बिजनेस केस, हम बोलते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो, आप प्ले वे क्लास के लिए जब आप एडमिशन करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन फॉर एग्जांपल 17 एंड 19, स्कूल ने रूल रखा है। ये आपको डिफ़ॉल्ट नहीं पता लगेगा, फंक्शनल वीडियो में हम बताएंगे, वहाँ से पता लगेगा। एंड देन यू नीड टू टेस्ट कि ये स्क्रीन पे जो बिज़नेस वैलिडेशन है वो लगा हुआ है कि नहीं। नाउ इस पर्टिकुलर केस में बिज़नेस वैलिडेशन हम कैसे चेक करेंगे, मुझे स्कूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं तो एक एडमिशन कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है हमारा, राइट। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21-22 सेशन के लिए अगर हमने ये एक बिज़नेस में मैं और समझाऊँगा, प्ले वे है, प्ले वे के लिए हम कहते हैं 21 ओपन है, ये 16 से 19 के बीच के ही बच्चे आने चाहिए, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में फ्रॉम और टू, ओनली उन्हीं की हम इंक्वायरी रिसीव करेंगे। सो व्हेन आई टॉक टू यू बिजनेस वैलिडेशन, ये मैं आपको फंक्शनली बताऊंगा। आप यहाँ पे आके कैसे चेक करेंगे इसको, इसमें ऐड इंक्वायरी में जाएंगे और प्ले वे के लिए आप देखेंगे ऐड करके कि वो 16 और 19 के बीच के ही डेट ऑफ बर्थ के बच्चे ले रहा है, ऐसा तो नहीं है उसके आउटसाइड भी यहाँ पे सेव हो रहा है तो वो फेल हो गई। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस वैलिडेशन टेस्टिंग, करेक्ट, ओके। देर इज अदर टेस्टिंग, डिलीशन वैलिडेशन टेस्टिंग एज वेल, जो कि मैंने आपको दिखाया था। आई जस्ट अगेन काइंड ऑफ गो फॉर हेयर एकेडमिक्स रूम मास्टर। अभी एक वैलिडेशन ये भी है जिसे में हम डिलीट वैलिडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले रूम को जब आप डिलीट करना चाहा था तो इसने मैसेज दिया, ये ठीक है, ये डिलीट पे हमने एक वैलिडेशन लगाया हुआ है कि अगर ये रूम किसी क्लास को असाइंड है तो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डिलीट वैलिडेशन टेस्टिंग, राइट। एंड इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको प्राइमरी फॉरेन की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। थैंक यू। So I covered screen view testing as well. Responsive I will cover, performance we will talk about 6 column, screen flow tabbing. Let us talk about this screen flow. What is screen flow tabbing, right? So what happens now? For example, again I'll take this form. Now स्क्रीन का एक फ्लो है, करेक्ट। तो 2-3 थिंग्स, एक तो कॉमन सेंस से हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें सबसे ऊपर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सबसे नीचे आनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी स्क्रीन में कुछ इस तरीके का है कि कुछ चीज़ें हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारी स्क्रीन नीचे चेंज होती है या बिहेवियर चेंज होता है, देन दैट इज़ फ्लो। अनदर थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया तो आप टैब से देखेंगे ऐसे चलना चाहिए। ये अब जब मैं टैब दबाऊंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट नेम के बाद वो सीधे यहाँ आ जाए। इट शुड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सारे कॉलम पे कवर करके ही जाना चाहिए। यहाँ पे शायद कॉलम पे नहीं आया टेस्ट, देन इट इज़ ए प्रॉब्लम, राइट। कॉलम पे आया, प्ले वे पे आया, आप देख रहे हैं टैब एक एक पे जा रहा है। सो दिस इज स्क्रीन फ्लो, प्रॉपर चलना चाहिए। दिस इज समथिंग अबाउट द स्क्रीन फ्लो टेस्टिंग। ओके, सो वी कवर्ड स्क्रीन फ्लो एज वेल। Let me now talk about a little performance, and first of all let us talk about this responsiveness. What is responsiveness? So at times you open these screens on your mobile, तो क्या होना चाहिए कि अगर मैं इस स्क्रीन को छोटा करूँगा तो ये कटनी नहीं चाहिए, करेक्ट। यानी कि मेरा कंटेंट सारा आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव कहलाती है स्क्रीन। अपने आप उसके कंटेंट एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? इसकी टेस्टिंग ऐसे करते हैं, इसमें जाएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं तो ये मोबाइल के फॉर्म में आ गए। यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, टैब के बना सकते हैं। एंड हमको देखना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे स्क्रीन के कंटेंट गायब हो जाएं। आप देख रहे हैं कि ये अपने आप सब सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ दे रखा है मोबाइल और टैब के लिए। अब ये टैबिंग मोड में आ गया, ये मोबाइल मोड में आ गया और अब इसे बंद कर देंगे यहाँ पर तो ये फुल स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। तो हमें हर स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करनी होती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी कवर्ड दीज टॉपिक्स एंड I'll create another video, third, for rest of the topic, but this is good to go for so many other things. Thank you.